Hi, hi. Finally, I'm live after काफी time. I mean, after so much of time. After so long. Sorry. After so long. So yay. Hi everyone. So for today's session, I'm personally very happy and hi. Okay, so today's session, I am having an amazing person. She is a psychologist and works at a student as a student counselor. And since the what I believe is that the teenage is a very delicate and kind of delicate age, and we a lot of us, most of us basically, we suffer a lot of issues regarding parents and the other things. So today I have her, and we are gonna talk about every issues and the problems and everything in details. So she is right here. Let me just invite her. Hi ma'am, how are you? Hi, Arushi. How are you? I'm fine. I am also fine. So I was just telling everyone that how amazing you are and how glad I am that you gave us time. Thank you so much. It's my pleasure that I got this opportunity to talk with you people directly. So I'm happy to have this session. I'm very curious to know the questions which our members are going to ask. So, Yes. Okay. So since I gave a brief of you that what you do and what actually, but I want you to just address them, that what is actually all about. okay, sure. Hello, everyone. I'm Arisha Salman and I did my master's in psychology. So I'm a psychologist by profession and I worked as a school counselor and now I have started online sessions too, right? So I just take online sessions and my page is there on Instagram by the name The Stress Healer. You can contact me there whenever you want. I take call sessions also, and I'm just trying to make some motivational videos on YouTube regarding these issues which are going on. See, basically, we have made this thing a very, very big, mental health is something related to psychiatric problem, right? Hardly we know the difference between psychological and psychiatric. Yeah. Basically every one of us is facing some or the other thing like stress, tension. Psychology is the subject which includes human behavior, so everything is there in human behavior, which ultimately means that psychology includes each and everything. So if you are having any problem, any issues, the basic or the main problem or the base of every problem is lack of communication. We are very, very hesitant in communicating with other members and other people. That's why we face different types of problems. So I request you all to express yourself, to share your things so that we can help you in solving your problems. Yeah, thank you so much for your words, ma'am. That's so true that communication gap and the lack of communication is very uh, harmful for your own health and your own peace. So yeah, okay. So as we all mentioned that as we both mentioned that we will be talking about this specific thing, which is the issues we have when we are a teenager, or problems as a teenage we suffer. So the first thing I want to mention is that when we actually come into teenage, it's like achanak se we have different scenarios. We started building different types of friendships also, and in this case we have a lot of trust issues. Fake friendships come, and the relationships we build, and we take it like sometimes it's like no, it's the love and everything. And
somewhere it to lot of extent it also disturb our daily things, our important things. So I want to ask first that why it is actually too much hyped up when we come into teenage. My first question is this, and then secondly, how it is like we can consider it, is it a good or bad, and how we can include it as our in our like it should not be like harming our own health and our own activities. Like when trust issues come and all these fake friendships and all come, it's like your bubbliness gets out and you face the reality. So how to just overcome that and how to deal with that? Okay, so basically, I would like to start with a little bit of briefing from our childhood, right? जनरली जो टर्म्स मेंशन किए जाते हैं एडोलेसेंट एज, तो वी से कि 13 इयर्स, राइट? टीन एज 13 पे स्टार्ट हुई है एंड 13 to 18 इयर्स। कुछ ऐसा बायोलॉजिकली ऐसा नहीं होता कि बस एग्जैक्टली बस इसी के बीच में आ गए हम। ये तो जनरली डिविजन्स करे गए हैं कि 13 to 18 इज कंसिडर्ड एज एन एडोलेसेंट पीरियड एंड द पर्सन एंटर्स इनटू अडल्टहुड। सो चाइल्डहुड से whatever the way our parents deal with us, जैसा हमारी अपब्रिंगिंग होती है, नॉर्मल हमारे इंटरेस्ट भी हमारे स्किल्स के बेसिस पर होते हैं, एवरीथिंग लाइक एज सून एज वी हिट द टीन एज, लाइक 12 का एंड होते होते, यू कैन कॉल इट एज अ लेट चाइल्डहुड, और 13 आते आते बेसिकली both the males and females we have hormonal changes, mainly estrogen, progesterone and testosterone. You might have heard these common terms of hormones. ये 3 hormones मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंटली वर्क करना शुरू करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल चेंजेस होते हैं। मेल फाइंड डिफरेंट चेंजेस इन देयर बॉडी, इन देयर पर्सनालिटी, एंड सो द फीमेल्स टू। वॉइस में चेंज हो रहा है, लुक में चेंज हो रहा है, दे आर हैविंग बियर्ड एंड मुस्टैचेस, एंड फीमेल आर हैविंग डिफरेंट फिजिक एंड डिफरेंट चेंजेस। So उस वजह से not only physically but internally also, or you can call it as a thing, a change in our mindset, कहीं ना कहीं हमारा interest change होने लगता है। Like because of these hormones, हमारा interest कहीं ना कहीं shift होकर वो opposite sex की तरफ attractions होते हैं। We have much curiosities than ever before. क्यों ऐसा होता है? What are the basic things? Why I'm getting attracted to that person? हम लोग उसको नॉर्मल टर्म्स यूज करते हैं, क्रश है, अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, बट बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि हम सबसे पहले बोलने लगते हैं, ओ मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं, आई एम इन लव, राइट? सो एवरीथिंग व्हेन यू आर हैविंग क्रश और अट्रैक्शन फॉर द ऑपोजिट सेक्स, इट डजंट मीन कि यू आर इन लव। Yeah, exactly. और उसी वजह से when you are in a haste situation, you are very curious and eager to get into that thing कि यही करना है, तो वहां पर हमारे साथ सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं कि हम बस सब कुछ when we like someone, और जब हम किसी पे क्रश होता है, बेसिकली वो पर्सनालिटी बेसिस पर होता है, लाइक एक्सटर्नल पर्सनालिटी, फिजिकली द पर्सन इज लुकिंग गुड, या फिर किसी के पीछे बहुत लोग हैं तो कहीं ना कहीं होता है, अरे इससे मेरी दोस्ती हो जाए तो आई विल बी लाइक सबसे बेस्ट हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा इंसान मिला और ये मुझे लाइक करने लगे। कहीं ना कहीं इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे अंदर एक ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं जिससे हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं मतलब अपने एप्रिसिएशन चाहते हैं। हर कोई हमें अप्रिशिएट करे, राइट? मिरर के सामने घंटों अपने आप को देखना, हाउ डू आई लुक, लड़कों में स्पाइक्स कर लूं, ऐसे कपड़े पहनूं, लड़कियां थोड़ा थोड़ा अपने को देख के स्माइल करना, थोड़ा सा कुछ मेकअप ट्राई करना। और जब ये सब चीजें हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, वही हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा माइंड हमारे नेचर में ये चीजें शामिल कर देता है कि हम इन चीजों की तरफ हमारा रुझाव ज्यादा होने लगता है। वी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज एक्टिविटीज, और हम जब ये करना शुरू करते हैं, वी आर लाइकिंग इट, वी आर फीलिंग हैप्पी व्हाइल डूइंग दिस थिंग। पर वहीं पर जो पेरेंट्स हमें कहीं ना कहीं बचपन से एकदम सिंपल अपनी चीजों में लगे रहना, पढ़ाई में लगे रहने में जब ये चेंजेस देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि उन्होंने भी टीन एज में सेम चीजें करी थी,
बट वो कहीं ना कहीं वेरी क्विकली कि मेरा बच्चा कोई गलत चीज में ना पड़ जाए, वो बच्चे को जज करना शुरू कर देता है. इफ अ Exactly. पर्सन इज बिजी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया हो, कोई भी सोशल साइट हो, पेरेंट्स आर इनटू दिस. पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, होमवर्क नहीं किया, ते हो रही है. अगर कोई नॉर्मल जोक्स पर भी स्माइल कर रहा है तो पेरेंट्स आर इनटू दिस थिंग, किससे बात करके स्माइल कर रहे हो, बिकॉज दे आर क्यूरियस कहीं ऐसा तो नहीं इस एज में मेरा बच्चा, ही और शी इज ड्रिफ्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड. तो इस Exactly. वजह से ये, और बच्चे जो है वो अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या उनको जो सेक्सुअल क्यूरियोसिटीज होती है, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर सेक्स मेंबर्स, तो वो ये सब चीजें अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते. दे फील हेजिटेंट, पेरेंट्स से कैसे बोलें, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो हमारा इंडियन कल्चर इस चीज में बहुत ज्यादा है जिसको हम कहते हैं लिहाज. Yeah. कौन सी बात किससे करनी है, पेरेंट्स के सामने ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना, ये नहीं बोलना. और बचपन से हम जो चीजें करते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं टीनेज आते ही उन चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हो जाते हैं. ये चीजें नहीं, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, ऐसे बात करो. तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में ये डिफरेंसेस, ये बार बार पोक करने वाली सिचुएशन उन दोनों में गैप्स बढ़ाने लगती. Basically, it's मैक्सिमम drastic change for both of the side, like for the बोथ ऑफ दिस parents साइड, as well. Like, राइट. okay, so But parents should understand this thing, और कहीं ना कहीं if they are failing to understand this thing, तो child should communicate this thing to the parents कि ये प्रॉब्लम हो रही है, या मम्मा हमें ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं और ऐसे थॉट्स आ रहे हैं. तो मदर शुड बी वेरी फ्रेंडली विद द डॉटर एंड फादर शुड बी फ्रेंडली विद द सन. आई एम नॉट सेइंग कि मदर सन से फ्रेंडली नहीं हो सकती, बट इफ द सेम सेक्स पर्सन विल टॉक, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर देम. अगर पेरेंट्स नहीं तो दे, टीनेजर्स शुड टॉक टू देयर एल्डर सिबलिंग्स या कोई कजिन जिस पे दे कैन ट्रस्ट, राइट. कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसा होना बहुत जरूरी है जिसपे हम कन्फाइड कर सके विदाउट हैविंग दिस डाउट कि ये हमारी बात किसी और को कन्वे कर देगा. ऑल द टाइम टीनेजर्स आर फेलिंग द फियर ऑफ गेटिंग जज्ड, और वो जजमेंट कहीं ना कहीं हमें अपने पेरेंट्स से ही मिलने लगता है. कहीं पेरेंट्स कंपैरिजन करने लग जाते हैं, कहीं पेरेंट्स जज करने लग जाते हैं, उनके बेटे ने ऐसा किया तुम क्यों नहीं कर सकती. एंड सैड टू से दिस, बट आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि बच्चा कितनी भी मेहनत कर रहा है और पेरेंट्स कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे हैं बच्चे को अप्रिशिएट करने में. I have witnessed a case, one of my counseling case, in that a child has scored some 90 plus, okay, 90 plus percentage in the board examination, and he came to me and cried and said कि मैम मेरे हिसाब से इतनी अच्छी परसेंटेज आई क्योंकि मैं हमेशा 70s में लाता था, और पहली बार बोर्ड एग्जाम्स मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले, और मेरे पेरेंट्स से मुझे ये रिव्यू मिला कि ठीक है और मेहनत करते तो शायद और अच्छे आते. they're not तुम्हारे क्लास में they are not satisfied. This is whatever you are doing, you are teaching the same thing to your child also. exactly. But वही है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को भी ये चीजें कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं करते कि मम्मा मुझे इस चीज से हर्ट हुआ. When I called the parents, I talked to them, तो उनकी मदर का ये रिप्लाई था, she said मैम अगर हम इसकी तारीफ कर देंगे तो कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तो आगे नहीं कर पाएगा. मैम वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर चाइल्ड. दे सेड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर चाइल्ड, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसकी तारीफ करने से घबराते कि कहीं मेरा बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए. पर अगर उन्हीं पेरेंट्स को ये कम्युनिकेट कर दिया जाए कि आपका बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि लो सेल्फ एस्टीम कर रहा है अपनी, क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स से अप्रिसिएशन नहीं मिला. इफ आई टॉक अबाउट यू आरुषि, आपकी लाइफ में बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होते हैं हमारी लाइफ में, बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, बट वी हैव सम सिग्निफिकेंट पीपल, राइट, मे बी योर कजिन, मे बी योर मदर. अगर हम कुछ भी पहन ओढ़ कर तैयार हुए हैं और हमारी मदर ने कमेंट कर दिया, नो मैटर व्हाट, अगर वो नेगेटिव कमेंट है, हम कभी हैप्पी नहीं हो सकते भले ही अगले 100 लोगों ने हमारी तारीफ करी. exactly. we want appreciation from those significant others. exactly. पर यही कम्युनिकेशन जो हम
स्ट्रेस में रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या मेरे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पेरेंट्स हमें समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली कन्वे नहीं कर पा रहे हैं बात अपने पेरेंट्स को फ्रेंडली वे में, सो आई सजेस्ट यू ऑल कि किसी न किसी को, मे बी योर कजिन, मे बी समवन एल्डर whom you can trust, और यू कैन अप्रोच सम काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, जो कहीं ना कहीं आपके और आपके पेरेंट्स के बीच का ये कम्युनिकेशन गैप कम कर सके, आपकी बात उनको और उनकी बात आपको डायरेक्टली बता सके, ताकि ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज ना हो। Right. Right. And so quickly coming to the second part which you have asked, that relationship things जो बहुत जल्दी हम लोग कहीं ना कहीं love and all को categorize कर देते हैं. So that It's very natural. at this thing that Right. to what extent we should actually entertain the sexual attractions you talked about, like to what extent Yeah. Right. that's the thing. Yeah. Okay, before starting with this thing, I would like to ask or make you people aware with one concept. जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं, like since childhood we have some or the other thoughts. केजी नर्सरी का बच्चा होगा, फर्स्ट का बच्चा होगा, अगर आप उनसे पूछे बेटा क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, जो उसने सुना है वो बनना चाहता है। बट वो बच्चे को नहीं पता कि ये फील्ड होती क्या है, इसमें बनना कैसे, डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10th 95% बच्चों का माइंडसेट चेंज हो जाता है जब वो अवेयर होते हैं अपने इंटरेस्ट से और अपने सब्जेक्ट से। जो बच्चा बचपन में कह रहा है मुझे तो डॉक्टर बनना है, 10th क्लास के बाद आते आते उसने देखा कि उसका इंटरेस्ट तो साइंस में कभी है ही नहीं, बायो में तो कभी उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, ही और शी इज अनेबल टू डू एनी सॉर्ट ऑफ डायसेक्शंस एंड ऑल। तो उस सिचुएशन में बच्चा पहले अपने माइंडसेट चेंज कर लेता है। तो कहीं भी अगर हमने बचपन में कोई बात तय कर ली है तो हम लाइफ लॉन्ग वो डिसीजन को कायम नहीं रख सकते। हमने भी साइकोलॉजी हमारी लाइफ में क्लास 11th में आई, तो बचपन में आई वॉज अनअवेयर अबाउट दिस सब्जेक्ट ओनली। हम कैसे कह सकते थे कि आई विल मेक माई करियर इन दिस सब्जेक्ट, isn't it? Same thing I want to relate with this relationship stuff. टीन एज में आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के लिए अट्रैक्शन फील होना शुरू हुआ ऑपोजिट सेक्स मेंबर्स से। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं वो इंसान हमें देखे, मेरी तारीफ करे, राइट? तो उस सिचुएशन में बेसिकली अगर हमें ऐसी फीलिंग्स हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि आज हम इस इंसान से कमिटमेंट कर रहे हैं क्लास 6 और क्लास 7 में और आने वाले 10-15 साल बाद हम इसी से शादी करें। जैसे हम बचपन में नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारा ये कमिटमेंट कितने टाइम तक चलेगा, हम अपने करियर में यही चूज करेंगे या नहीं, सिमिलरली हम किसी इंसान पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आज तुमसे कमिटमेंट कर लिया क्लास 7th 8th 9th में और हम 10 to 15 years बाद तुम्हारे साथ ही शादी करेंगे। वी नेवर नो, थिंग्स चेंज इनटू जस्ट, वी कैन नॉट से कि आज जो है टुमारो आई एम हैविंग द सेम फीलिंग और नॉट। अगर उसी इंसान से हमें कोई नेगेटिव फीलिंग्स हो गई, कुछ हमने उसके बारे में कुछ इतना नेगेटिव पता चल गया कि हम उससे बात तक नहीं करना चाहते। यू नेवर नो दूसरे इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। And even सबसे बड़ी प्रॉब्लम, grow into different person, like each day you are growing and you're growing into different persons, डिफरेंट पर्सन। और कहीं ना कहीं व्हेन वी आर इनटू अदर पीपल तो हमें लग रहा है कहीं हमने जल्दबाजी तो नहीं कर दी कमिटमेंट करने में। आई थिंक अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा आई लाइक हिम, और आई थिंक अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा आई एम हैविंग फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, शी इज नाइस, शी इज बेटर, राइट? तब शुरू होती है कंफ्यूजन, तब शुरू होता है फ्रस्ट्रेशन, तब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। सो इट्स बेटर टू कीप द थिंग्स टिल फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वी एक्सपेक्ट ट्रस्ट, वी एक्सपेक्ट कि हम एक दूसरे से शेयर कर पाए, जब हमें प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ कोई हो हमें सपोर्ट करने के लिए, राइट? तो ये चीजें तो हमें फ्रेंड्स में भी मिल सकती है ना, फ्रेंडशिप में भी वी फाइंड दीज थिंग्स। अगर हम अपने फ्रेंड को, मे नो मैटर व्हाट मेल और फीमेल, अगर हमें अच्छा लग रहा है या कुछ पॉजिटिव उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है तो इट्स फाइन, बट फ्रैंकली स्पीकिंग we should never trust the person इतनी जल्दी to get physical with that person and to spoil our life। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बहुत जल्दी में कोई ना कोई डिसीजन या सिचुएशंस कर देते हैं और बाद में हम खुद ही प्रूफ भेज देते हैं उस इंसान को
कि ठीक है, पिक्चर्स ले ली, फोटोज ले ली, 2 साल की रिलेशनशिप थी, इंस्टा पे पोस्ट कर दिया, अब क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया। अब क्या, अब उन फोटोज को लेके ब्लैकमेलिंग हो रही है। अच्छा तुम उसके साथ घूम रही हो, वो बॉयफ्रेंड है, बताऊं कि तुम मेरे साथ कैसे रहती थी, या बताऊं तुम मेरे साथ कैसे रहते थे। फिर वही फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, विच ऑल लीड्स टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम अस फ्रॉम आवर करियर ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि हम सिर्फ करियर को डेडिकेट करना चाह रहे हैं तो हम इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे। हर एक को अट्रैक्शंस होते हैं, हर कोई अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है, राइट। लेकिन हमें एक लिमिट तक उन चीजों को रखना है। किसी को भी, चाहे कितना ही ट्रस्टवर्दी इंसान ना हो, इतनी पावर किसी को नहीं देनी चाहिए कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करके हमारी लाइफ को स्पॉइल कर सके। बेसिकली ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई सिचुएशन करना ही नहीं चाहिए हमें। It's fine to have friends, to hang out with them, to go to some restaurant or enjoying the birthday parties together. phone पे बात कर रहे हैं, so why you are not feeling comfortable to get them introduced to your parents? अपनी चीजों को इतना इंटीमेट नहीं कर लेना चाहिए कि आप किसी थर्ड पर्सन से शेयर ना कर पाए। Okay. और किसी पर भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए कि आज वो कह रहा है कि मेरे साथ रहेगा या मेरी चीज समझ रहा है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, अगर हम लोग, कोई इंसान बहुत जल्दी हमारे साथ, हम किसी से बात करते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स से कुछ लड़ाई हो गई और हमारा कोई ऑनलाइन फ्रेंड बन गया है, धीरे धीरे हमारी ऑनलाइन फ्रेंडशिप अच्छी होती जा रही है, और उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमारी फ्रेंडशिप तो अच्छी हो गई, लेकिन ऑनलाइन फ्रेंड ने हमसे बोला कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वही मेरे साथ भी होता है, मेरे पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं। Yeah. तो कहीं ना कहीं वी स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल कि ये इंसान भी वही चीजें फेस कर रहा है जो चीजें हम फेस कर रहे हैं, तो वी स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, और हम अपनी चीजें, अपने सीक्रेट्स, अपनी फैमिली के सीक्रेट्स उससे शेयर कर सकते हैं, Yeah, yeah. और धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ जाती है। एंड द केस विच आई हैव विटनेस्ड एंड वंस आई हैव शेयर्ड इट विद माय स्टूडेंट्स आल्सो, द गर्ल वाज वेरी कंफर्टेबल विद द बॉय, और वो अपनी हर चीज उससे शेयर करने लगी थी, एवरीथिंग, कि मेरी फैमिली में ये हुआ, मम्मा ने ये कहा, पापा ने वो कहा, क्राइंग एंड टॉकिंग टू हिम थ्रू आउट पूरी नाइट। एक दिन उसके सामने ये राज खुलता है कि उस लड़के की आईडी उसके बाकी फ्रेंड्स के पास भी थी। कभी कोई फ्रेंड बात कर रहा होता था और कभी कोई फ्रेंड, एंड शी वॉज द वन जो बेवकूफ बन के समझ रही थी कि समवन इज ट्रस्टिंग मी, आई एम हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड, आई एम इन अ रिलेशनशिप, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन थ्रू आउट माई लाइफ। और हम ऐसे इंसान पर भरोसा कर बैठे, और उसके बाद क्या हुआ, वट एवर यू नो वट थिंग्स आर गोइंग ऑन दीज डेज, जहां बस एक हफ्ता फ्रेंडशिप हुई, नेक्स्ट वीक कमिटमेंट, कुछ लोगों का तो एक ही वीक में सब कुछ हो रहा है, कमिटमेंट और उसके बाद ब्रेकअप। क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया। वाई यू आर अलाउइंग समवन टू इंटरफेयर इन योर लाइफ दैट मच कि वो आपकी लाइफ स्पॉइल कर सके? वाई कांट यू वेट फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन जो आपके लिए सही हो? अभी जैसे हम लोग स्कूल लाइफ में क्या होता है, फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स से अट्रैक्शन होने लगते हैं, फ्रेंड, वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि चलो ये मेरा फ्रेंड है, लाइफ लॉन्ग हम उसके साथ रहेंगे। क्लास 10th के बाद फ्रेंड कोई और स्कूल में चला गया, आप कोई और स्कूल में चले गए, क्योंकि आपकी स्ट्रीम फर्क हो गई, उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, आपकी चेंज हो गई। अब क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रायोरिटी बदल गई, तुम्हारे दोस्त तो दूसरे हो गए, तुम तो दूसरे लोगों से फ्रेंडशिप करने बैठ गए। अब फ्रेंड्स लोग एक दूसरे पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगे, अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं या तुम मुझे बॉयफ्रेंड मानती हो या तुम मुझे गर्लफ्रेंड मानते हो, तो बाकी फ्रेंड से बात करना बंद करो, ब्लॉक देम, शोइंग द इनसिक्योरिटीज। तो क्या आप ये इनसिक्योरिटीज, ये इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस लेकर लाइफ में चल सकते हैं? आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल, राइट? सो what do you want to say on this thing? What I believe is that every person have their energies, which I call them assets, right? And in teenage or if further, we need to use this energy to build our own empire, right? But at this time, what we start doing, we put these energies and our assets into someone else's life. We build their life, and then once they are gone, their priorities has changed, we are left with nothing, neither the person nor our own life. Or No, fine, very true. yeah, so for me it's like, do everything whatever you feel like, but your priority should be your own, putting energy on your own goals and on your own work.
So your priority should be your own self. See, sometimes what we do is कि अगर हमारे friend ने the so called boyfriend or the so called girlfriend or whatever the friend, इतना ज्यादा हम किसी के साथ involve हो जाते हैं कि अगर उन्होंने हमको बात करना बंद कर दिया या block कर दिया, so we are spending our whole night, whole days in crying. फैमिली से भी मूड खराब है. इट इज स्पॉइलिंग आवर पर्सनैलिटी. सिर्फ एक इंसान. इट इज नॉट लाइक दैट. लोगों का जनरली आता है कि मैम अच्छा आप बताइए, मैं उस इंसान के बिना खुश नहीं रह पा रही, मैं उस इंसान के बिना नॉर्मल डेज वैसे नहीं गुजर रहे. एंड आई आस्क्ड द पर्सन कितना टाइम हुआ तुम्हारी फ्रेंडशिप को. मैम लास्ट 3 months से वी वर इन अ रिलेशनशिप. आई वाज लाइक बेटा 10 years की रिलेशनशिप एक दिन में खत्म हो जाती. It all depends on the intimacy level and all depends on the way of communication, the way of understanding and trust from each other. So problem यहाँ पर ये होती है कि हम ये नहीं है कि हम अगर हम उस इंसान को इतना मिस कर रहे हैं, हम इंसान को नहीं, इंसान से बात करने की हैबिट को मिस कर रहे हैं. इन साइकोलॉजी में बेसिकली बिलीव कि 21 days में हमारी हैबिट्स कहीं ना कहीं फॉर्म हो जाती है. बट इफ वी फॉलो द स्पेलिंग ऑफ हैबिट HABIT, वी कैन फाइंड वन अमेजिंग थिंग. अगर हम उसमें से H रिमूव करते हैं, अ बिट विल बी देयर. इफ यू रिमूव A, bit will be there. If you remove B, it will be there. Similarly, habit will keep on going, but it will be going very slowly. It will take much time. Yeah. तो बहुत ज्यादा इसमें इश्यूज होने लगते हैं. एंड वी शुड बी वेरी वेरी मच अवेयर अबाउट दीज थिंग्स कि हमें उस इंसान की हैबिट हो गई है. अगर हम अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे आफ्टर नोइंग कि वो, अब कई बार क्या होता है, किसी इंसान से अलग हो गया, उसका थॉट आ गया, so what we start doing, नेगेटिव सॉन्ग्स प्ले करना, डिप्रेसिव सॉन्ग्स, जो मेमोरीज, जो मोमेंट्स उस इंसान के साथ गुजारे होते हैं. Amplify that thing, yeah. Right. वही memories we try to relive those in our mind. Exactly. और that is more painful. Yeah. वो इंसान ने हमें कितना हर्ट किया है, अगर एक बार वो सोच लो और अपने आप को डाइवर्ट करके जस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल जो अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहते हैं या जो लोग तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं. Recently I have gone through a case, matlab on news channel, it was very disturbing. Yeah. A man, he was very poor, right? He was unable to afford much for his daughter, पर उनकी सिर्फ एक बेटी थी. He has sold his kidney अपनी बेटी को MBBS कराने के लिए, and she has qualified it, right? और थोड़े दिन बाद एम्बुलेंस घर आ रही है उनकी बेटी की डेड बॉडी लेकर. Why? Because she has committed suicide for her boyfriend. क्या गुजरती है उन पेरेंट्स पर जब जो है वो अपने बच्चों के लिए पूरी लाइफ स्पेंड कर चुके होते हैं, और अगर उनके बॉयफ्रेंड, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड या सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने एक नेगेटिव कमेंट कर दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, आई वांट अ ब्रेकअप, आई डोंट लाइक यू, तो आप उस एक नेगेटिव कमेंट के लिए अपनी पूरी लाइफ खत्म कर देंगे, वो लाइफ जो आपको दोबारा कभी मिलनी ही नहीं. सो दिस इज द मोस्ट स्टूपिड एक्ट वन कैन एवर डू. Exactly. सो इसमें भी प्रॉब्लम यही है, बिकॉज वी आर नॉट शेयरिंग इट. अगर कोई इंसान, इन साइकोलॉजी वी हैव बीन टोल्ड अबाउट दीज थिंग, एक कॉज कहलाती प्रेसिपिटेटिंग कॉज. उस कॉज में क्या होता है कि हमें बहुत सी चीजें बार बार हर्ट करती रहती हैं, लेकिन एकदम से कोई छोटी सी बात होती है जो हमें इतना हर्ट कर जाती है कि हमें एक बहुत बड़ा एक्शन ले लें. Yeah. जरूरी नहीं है कि उस स्पेसिफिक, तो कोई कहते भी कि आपने सुसाइड इतनी सी बात पे कर लिया, ये नहीं होता है कि इतनी सी बात पे कर लिया. थ्रू आउट आपका माइंड इतना पजल्ड हो चुका होता है कि यू वर फोर्स्ड टू कमिट दैट एक्शन. पर शायद आपने वो आखिरी बात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये वो आखिरी बात होती है कि राइट, पर्सन कैन नॉट होल्ड एनी मोर नाउ. तो इट्स नेवर अ वन. वेरी ट्रू. इट्स नेवर अ वन. और बेसिकली अगर हम ये चीज देखें कि शुरू से जब वो चीज हमें हर्ट करना शुरू हुई थी या हम लोग प्रॉब्लम में फेस कर रहे थे या इट वाज डिस्टर्बिंग अस, हमारा डेली रूटीन डिस्टर्ब कर रहा था, अगर हम किसी इंसान से whom we can trust उससे डिस्कस कर लेते तो शायद हमारी प्रॉब्लम का आज कुछ और ही सोल्यूशन. राइट. Yeah, right. And what So any yeah, I also believe that हम emotionally बहुत ज़्यादा dependent हो जाते हैं. We like yeah, and that is the reason कि हमें उनका not being there and everything start affecting to that extent. So this is the like we start getting too much
emotionally dependent that we are. And this is also because we are not getting that emotional support from our parents, which should be there. So wo we Right. outside, and when we start getting it, it's like we are in love and everything. And then once we get out, we stop getting that emotional attachment or the support, again it's like, we are devastated, there is nothing, and this thing works. So yeah, that's right. So also I want to talk about like what to do to bridge the communication, like how to uh, get the communication gap, remove the communication gap from our parents and start talking. Because somewhere the stereotypical things are there that हमारे पेरेंट्स को अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ है कि they could not take the changes, कि एकदम से कैसे we have started having changes and all. तो what to do to create a bridge or to communicate with our parents from both the sides, like from parents side as well and the children side as well. राइट, ओके। सो व्हेन वी सी कि स्टार्टिंग से अगर देखें तो जब बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहे हैं टीन एज में, वही बच्चा, इधर अ बॉय और अ गर्ल, वही अपनी हर चीज, छोटी से छोटी चीज, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो चाहे फ्रेंड से रिलेटेड हो, अपनी मदर से शेयर कर रहा होता है, Yeah. या मे बी अपने फादर से, जिससे भी हम लोग क्लोज और कंफर्टेबल है, हम उससे शेयर कर रहे होते हैं। जब वो चीज में चेंजेस दिखते हैं पेरेंट्स को, टीन एज में आके वी लाइक अ लिटिल बिट ऑफ आइसोलेशन। हम अपनी डे ड्रीमिंग्स में रहने लगते हैं, अपने को बार बार देखना, सजना संवरना, अपने पर्सनालिटी पे थोड़ा वर्क करना, इन चीजों पे हम ध्यान देने लगते हैं। और पेरेंट्स को लगने लगता है कई बार कि हमारा बच्चा हमसे दूर हो रहा है। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि उनमें टीन एज आ गई, पर वो ये सोचने लगते हैं कि कहीं उसकी कंपनी तो नहीं गलत हो गई, कहीं फ्रेंड सर्कल तो ऐसा नहीं जो उसको पेरेंट्स से दूर करे दे रहा। और पेरेंट्स बच्चों को, बहुत ही कम पेरेंट्स एंड दोस किड्स आर रियली फॉर्चुनेट इनफ, lucky to have parents like that, that's why I can communicate this thing, कि बहुत ही कम पेरेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक एज पे अपने बच्चों को समझाते हैं ये चीज। इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन डायरेक्टली कम एंड डिस्कस इट विद। तो वो पेरेंट्स जो होते हैं इन चीजों को अपने आप ही इनिशिएट करते हैं, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं, एज यू सेड, टू ओवरकम दैट कम्युनिकेशन गैप, वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स जनरली एक नेगेटिव अप्रोच पकड़ते हैं, एंड दैट नेगेटिव अप्रोच इज, वो बच्चे को नेगेटिवली टॉन्ट करने लगते They come, हैं कि अब ऐसा बिहेवियर, even if when they come to communicate, they come as if we are going through some problems that we have yes, in a taunting way, wrong with us, something. right, they just come and say, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे पिछली बार एग्जाम में, जो अभी भी तुम सोशल मीडिया पे लगे हुए हो। Yeah. राइट, अब बच्चे को अगर उससे कुछ नेगेटिव हुआ है, तो मेनी पेरेंट्स आर इन दिस हैबिट कि वो उसको डांटने से पहले, प्रेजेंट में डांटने से पहले, पुरानी सारी नेगेटिव चीजें याद दिलाएंगे और अपना एहसान दिलाएंगे कि हमने जो है तुम्हें माफ किया इतनी चीजों के लिए, तो अब तुम प्रेजेंट में फिर ये सब हरकतें कर रहे हो। Yeah. उस सिचुएशन पे बच्चा जो है समझने की जगह फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं रूड हो जाता है। उसके बाद एक बड़ा सा लेक्चर इज रेडी कि तुम ऐसे हो गए हो, तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, तुम्हारी चीजें ऐसी हैं, और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कोई और ही वे ले लेती है, और बच्चा उस जगह से कहीं और ही माइंडसेट उसका चला जाता है और वहां से वो चुपचाप निकल जाता है। अगर उसने कुछ बोला तो बदतमीज हो, तमीज नहीं है बात करने की, और अगर वो चुप रहा तो बोलते क्यों नहीं हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीनेज की क्या होती है, कुछ मोमेंट्स पे पेरेंट्स हमारे कहते हैं इतने बड़े हो गए हो अब तक ये काम नहीं कर सकते, और कुछ सिचुएशंस पे कहते हैं छोटे हो, बड़ों के बीच में मत बोलना, एंड द चाइल्ड इज नाउ कॉम्प्लेक्स्ड, राइट, कि मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। एक वक्त पापा मम्मी कह रहे हैं बड़े हैं, और दूसरी साइड दे आर लाइक छोटे हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम यही हो जाती है कि दोनों तरफ से एक्शन लेना जरूरी है। Exactly. अगर बच्चा अपनी चीजें कम्युनिकेट खुद नहीं कर पा रहा है, तो माय सजेशन इज कि टेक द हेल्प ईदर ऑफ योर सिबलिंग्स और फ्रॉम समवन एल्स। मान लो किसी कोई अपनी आंट से कंफर्टेबल है, लाइक मौसी हैं, चाचा चाची हैं, होमसोएवर, अगर कोई ओपन माइंडेड है
जो चीजों को समझ सकता है, तो अपनी बातें उसके थ्रू कम्युनिकेट करें। एंड वन मोर थिंग, जब हम वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कई बार लड़कियों लड़कों दोनों में ही होता है, या तो हमें बहुत अग्रेशन होने लगता है Yeah. या तो हमारे आंसू आने लगते हैं, Yeah. तो हम अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। Overflowing of So the best thing, right, overflowing of emotion. So the best thing is you can write it down. आप उस चीज को लिख कर इधर ऑन व्हाट्सएप और समथिंग आप उनको मैसेज कर सकते हो, या फिर आप एक लेटर टाइप की चीज में अपनी पूरी बात, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लिखिए एंड गिव इट टू योर फादर और मदर। Yeah. एटलीस्ट आपको ये गिल्ट तो नहीं रहेगी कि मेरे पापा मम्मी मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे या हम उन तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए। Exactly. एंड आई एम डैम श्योर एक बार आप अपनी बात कम्युनिकेट करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के माइंडसेट में डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। Exactly. क्योंकि पेरेंट्स अपनी जगह सोच रहे हैं कि बच्चा ऐसा कर रहा है, वो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोच रहे हैं, और बच्चा भी पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहा। एक और नेगेटिव चीज है कहीं ना कहीं कि हमारे पेरेंट्स, अगर मान लो उनको लाइफ में कोई फेलियर मिला, तो Yeah. वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दे, उस लेवल पे पहुंचा दे कि वो एकदम सक्सेसफुल हो जाए, एकदम हर चीज में आगे बढ़ जाए, तो वो अपने बच्चे को ओवर प्रेशराइज कर देते हैं। Exactly. अगर मैं जैसे एज यू हैव वॉच्ड इन द मूवी, आजकल ये चीजों को इसीलिए स्प्रेड किया जा रहा है फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग। 3 Idiots में जैसे दिखाया था, बेटी हुई तो शील बी अ डॉक्टर एंड बेटा हुआ तो हील बी एन इंजीनियर। और बच्चा अगर कुछ और बनना चाह रहा है तो बचपन से ही वो सुनता आ रहा है कि मेरे पापा मेरे लिए ये चाहते हैं, मम्मी मेरे लिए ये चाहती है, कि उसकी अपनी बात को बताने की हिम्मत ही नहीं पड़ पाती। Exactly. बट एज इफ यू फोकस ऑन द मूवी, तो मूवी में भी यही चीज दिखाई है। वंस यू हैव कम्युनिकेटेड योर थिंग टू योर फादर प्रॉपरली, जैसे माधवन का, फरहान का रोल दिखाया था, ही वांटेड टू बी अ फोटोग्राफर, Yeah. तो उसके फादर ने उस चीज को रियलाइज किया। तो अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, यूज सम मैसेजेस और लेटर्स, यू हैव टू कम्युनिकेट इट। आप बैठ कर ये चीज सोचना कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात को अपने आप समझ ले, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एज आई हैव टोल्ड यू द केस जस्ट नाउ कि उनकी मदर वाज थिंकिंग कि अगर हम अप्रिशिएट करेंगे मुंह पर तो बेटा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और बेटा सोच रहा है मेरे पेरेंट्स हमारी वैल्यू ही नहीं करते। Exactly. राइट? तो अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अपनी चीज कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो एनी हाउ यू विल बी फेसिंग द प्रॉब्लम एंड यू विल बी द सफरर। अगर आपके, कई बार होता है हम लोग अग्रेसिव होके अपने पेरेंट्स से रूडली बात कर देते हैं और फिर चले जाते हैं, राइट? Yeah. डोर बैंग करके बस गए और एकदम लेट गए। रात में क्या होता है, मेनी टीनेजर्स एंड मेनी पीपल, वी कैन ऑल्सो रिलेट विद दिस थिंग, रात में ये टीयर्स चल रहे होते हैं with the thoughts in our mind कि हमने अपने पेरेंट्स को हर्ट किया। Exactly. राइट? वी फील वेरी बैड अबाउट आवरसेल्व्स, अबाउट आवर बिहेवियर, कि हमने अपने पेरेंट्स को ऐसी चीज बताई, अपने पेरेंट्स से ऐसा बोला, लेकिन अगेन दैट सो कॉल्ड ईगो इज इन बिटवीन, Yeah. और हम अपने पेरेंट्स को सॉरी नहीं बोल रहे उनको फील। और अगर पेरेंट्स के साथ भी यही होता है कि अगर उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, कुछ बुरा बोल दिया अपने बच्चे को, बुरा फील करेंगे, रो But they लेंगी won't say- मदर्स अकेले में, बट दे विल नॉट से दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। ये सो कॉल्ड ईगो, आई एम कॉलिंग इट एज सो कॉल्ड ईगो, क्योंकि कोई ऐसी ईगो वाली चीज नहीं है। हमें अपने पेरेंट्स से किस बात की शर्मिंदगी, Exactly. राइट? और अपने ही बच्चों से किस बात की शर्मिंदगी कि अगर हम गलती करें तो अगर अपने बच्चों के सामने सॉरी बोल दे तो देर इज नथिंग रॉन्ग, और अगर हम अपने पेरेंट्स से माफी मांग रहे हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। Exactly. We have to do that. They are the ones who have given birth to us, and whatever we are, it is just because of them. Yeah. आज के टाइम पर हम जिन रिलेशनशिप्स के नाम पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए कुछ भी करेगा, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए कुछ भी करेगी, प्रॉब्लम्स पड़ने पर वही बॉयफ्रेंड वही गर्लफ्रेंड यही जवाब देते हैं कि जो है मैं अपने पापा को हर्ट नहीं कर सकती, मैं पापा के सामने झूठ नहीं बोल सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बाकी लोग क्या बोलेंगे, मेरी मम्मा कुछ कर लेंगी। सॉरी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अपनी माँ की बातें करके
वहीं आप And I पेरेंट्स think का that's हवाला that देकर अपनी that's चीज। the correct thing at to an extent, that your parents should be your priority. But जब आप small ऑब्वियसली activities में आते हो तो उसमें आप prioritize नहीं करते हो. When there is a life existence situation, तब आपको याद आता है कि that your parents are your priorities. So that should not be वन that. मोर थिंग इज दैट कि अगर पेरेंट्स से, अगर मान लीजिए आपने अपने रिलेशनशिप में कोई इश्यूज क्रिएट हो गए, यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द बॉयफ्रेंड, आज सेट कि इमोशनली Yeah, डिपेंडेंट, कि मेरे emotionally. पेरेंट्स मुझे समझ नहीं रहे हैं, तो मुझे समझने के लिए अब मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, दैट पर्सन और मेरा बेस्ट फ्रेंड, ही इज द वन और शी इज द वन जो मुझे अच्छे से समझ सकता है। Yeah. ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स, ये हम बहुत जल्दी ये बिलीव कर लेते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट तो तुम हो। एक मिनट नहीं लगता भूलने में कि हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, Yeah. हमारी फैमिली भी है। पहली चीज, तुम ही हो सब कुछ, यू आर द ओनली वन फॉर मी। हम Yeah. अपनी हर चीज अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इनके नाम कर देते हैं, और वो शायद 2-3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का रिलेशनशिप, जिसकी आगे कितने दिन रहता है उसकी कोई गारंटी नहीं। और जब हमें उसी रिलेशनशिप से Yeah. धोखा मिलता है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या होती है? डांट पड़ सकती है, रो सकते हैं, पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन एट द एंड हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जो हमें हर सिचुएशन में सपोर्ट करते हैं। दे विल नेवर लीव अस। वो हर सिचुएशन में जितनी बड़ी मिस्टेक बच्चों ने करी हो, माफ करने की हिम्मत उन्हीं के पास है। सो इट्स बेटर कि जो लोग तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग है, जिनकी गारंटी है कि दे विल नेवर बी लीविंग अस, दे विल ऑलवेज बी देयर विद अस, एटलीस्ट उनको तो अपनी लाइफ में प्रॉपर प्लेस देकर रखो। किसी और के लिए उनको रिप्लेस तो मत करो। Exactly, exactly. So that's pretty, like, we got to know a lot of thing about how to communicate and all. There is one more major issues I want to discuss about. Like, जब आप टीनेज में आते हो तो मोस्ट ऑफ द ट्रॉमास यू कैन से जो आपने कभी चाइल्डहुड में मतलब एक्सपीरियंस किया है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, वहां पर खत्म हो गया. बट व्हेन यू एक्चुअली कम इनटू टीनेज, you started seeing that your mental illness, if you have any, start getting highlighted. Like in my personal thing also, that my mental illness also started getting highlighted once I got into my teenage. Also जैसे कि आप बोले कि appreciation we need, right? तो जब हमें वो appropriate appreciation नहीं मिलता है, या फिर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी से फिजिकली, तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज आती हैं related to our own body and all. And then this there are two things, like we have insecurities about our bodies, and which really, अगर आपकी टीनेज में आना स्टार्ट हो गई, it lasts lot, like so long. So how to deal with that insecurities, and what to do when your mental illnesses are getting highlighted, and you, even if not exactly the term mental illness, but the some signs maybe. So what we should do. ओके, तो बेसिकली अगर हम इसको सिंपल टर्म में बोले तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सेल्फ एस्टीम, Yeah, राइट? in अगर terms of बचपन से insecurities, yes. Yeah. या सेल्फ एस्टीम, बचपन से क्या होता है, जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं अपने फ्रेंड के लिए बहुत अच्छा फील करती हूँ, ये हैबिट सिर्फ टीन एज में, यू आर वेरी राइट, टीन एज में हाईलाइट ज्यादा होता है। Exactly. बचपन से हमारी वही आदतें होती हैं, पर टीन एज में आकर हम अपनी पर्सनालिटी का रियलाइजेशन करने लगते हैं, और उस टाइम जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो कहीं ना कहीं थ्रू आउट आवर लाइफ परसिस्ट करती है। Exactly. तो इसलिए उसमें हाईलाइट होना बहुत ज्यादा कॉमन है। टीन एज जैसे अप्रिसिएशन की हम लोगों को डिमांड है, तो बचपन से अगर मान लो कंपैरिजन हो रहा है, ये ऐसा वो वैसी, अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी गुड इन सिंगिंग, ठीक, Yeah. और आपकी बेस्ट फ्रेंड भी अगर बहुत अच्छी सिंगर है, Yeah. तो कंपटीशन होगा, कोई भी कंपटीशन हो, और उसमें सिर्फ एक ही का सिलेक्शन होना है, तो आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कहीं ना कहीं इन योर माइंड द थिंग विल बी देयर, काश Yeah. मेरा सिलेक्शन हो जाए, राइट? Yeah. अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड का होगा, यू विल बी हैप्पी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए अफसोस होगा Yeah. कि मेरा नहीं हो पाया। Yeah. पर अगर आप में और आपकी फ्रेंड में डिफरेंट ट्रेट्स हुए, यू आर द सिंगर एंड शी इज द डांसर, दोनों का अपनी अपनी फील्ड में सिलेक्शन हो गया, यू विल बी टोटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, अपने लिए भी उसके लिए।
Yeah. जब फील्ड क्लैश करती है तब हमें प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मान लो 3 लोगों का ग्रुप है, कोई 2 लोग अच्छे फ्रेंड्स बन के एक साथ हो गए और थर्ड ने निग्लेक्टेड फील किया, तो हमारे अंदर ये क्वेश्चंस आने लगते हैं कि उसने हमको क्यों नहीं, क्या फिजिकली मेरे अंदर कोई कमी है कि उसने हमको चूज ना करके उसको चूज Exactly. कर लिया, वो मुझसे किस मायने में अच्छी है या अच्छा है। बात यहाँ पर बस यही है, अगर आप सी, नो वन इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, नो वन, किसी को भी आप नहीं कह सकते, बट एवरी वन इज ब्लेस्ड विथ सम और दी अदर ट्रेट। Yeah. अगर एज यू हैव सेड कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस किया है इस चीज का कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट था जो बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं डिप्रेस कर चुका है, एंड नाउ यू आर द वन हु इज जस्ट प्रोपोगेटिंग दिस मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट। Yeah. तो दिस इज व्हाट द थिंग इज कि आपने इस चीज को एक पावरफुल एस्पेक्ट की तरह लिया। Yeah. जो चीज आप फेस कर चुकी हैं, डोंट वांट अदर्स टू फेस इट। Yeah. तो ये आपकी अच्छाई है, दिस इज योर पावर कि आप इसको प्रोपोगेट कर रही हैं इस चीज को बढ़ावा देने के लिए। एग्जैक्टली राइट। Yeah. तो इस सिचुएशन में वी द वर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंपनसेशन। ऐसे हम लोग कहते नहीं कि कोई गलती हो गई तो उसको दूसरी तरीके से कंपनसेट करो। अगर मान लीजिए कोई इंसान फिजिकली अपने को फील कर रहा है कि आई एम नॉट फिट, मैं फिजिकली जो हूं आर्मी में जाने के लिए फिट नहीं हूं, हाइट कम रह गई, या मेरा वेट ऐसा है, या मेरा स्ट्रेंथ ऐसी है, मैं जाना चाहता हूं पर नहीं, तो वो इंसान अपने को दूसरी फील्ड में भी तो डाल सकता है। Yeah. राइट कई बार ऐसा होता है कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कोई इंसान डॉक्टर फील्ड में जाना चाह रहा है, वो कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, लेकिन उसने देखा कि उसको कहीं ना कहीं ब्लड से फियर है, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द फोबिया ऑफ ब्लड। तो जरूरी है कि वो जो है प्रॉपर डायसेक्शन ही करे या कुछ ऐसा प्रैक्टिकल चीजें ही करे। he or she can be a good consultant, he or she can be a teacher of biology, can be a lecturer of biology। हमें अपने ट्रेट को, अपनी चीज को खत्म नहीं करना है, पर वी हैव टू मोल्ड इट एंड गिव इट अ न्यू वे। अगर हमारे अंदर कोई Means कमी we do है, not have to कोई push प्रॉब्लम, ourselves कि ठीक है, if we have a राइट, वी fear डू of नॉट हैव blood टू then पुश। we should not ये कि हाँ नहीं अभी I have to do the dissection इनको जा मतलब we do not need to push our You can do boundaries. that, you have to push it but to a certain limit। Exactly. पर ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कोई बच्चा कह दे मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, हाँ. ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसका मन नहीं है। मे बी वो जो पढ़ रहा हो या उसका जो तरीका हो या पैटर्न हो वो सही ना हो, तो इसके लिए वी हैव टू पुश द पर्सन, मोटिवेट द पर्सन टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ हिज और हर चॉइस, दैट विल बी बेटर। Yeah. ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स हमें किसी प्रोफेशन में जाने को कह रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, और हम उसमें नहीं जाना चाह रहे, तो अगर आप उस प्रोफेशन में जाते हैं और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, तो इट इज वेरी ट्रू कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बर्डन की तरह हो जाएगी। Exactly. इट विल बी सो मैकेनाइज्ड, इट विल बी सो, मतलब यू विल बी सो बोर्ड ऑफ योर थिंग्स कि एक लगेगा कि बस एक मोनोटोनस रूटीन चल रहा है। Yeah. बट इफ यू विल बी ऑप्टिंग द प्रोफेशन विच यू लाइक, तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्क को एंजॉय कर पाएंगे, यू विल बी हैप्पी, यू विल फील हैप्पी विद द पीपल, यू विल फील वेरी मच सेफ, और आप उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमें लोगों ने इस चीज के ऊपर नेगेटिव कमेंट किया, ओ यू आर वेरी शाय, कई लोगों को कहा जाता है तुम जो हो स्टेज पर नहीं बोल सकती, यू आर वेरी शाय, बोलने में Yeah. प्रॉब्लम है, या तुम कुछ लोगों में होता है सम स्टैमरिंग इश्यूज होते हैं, या कुछ लोगों की स्पीच नहीं क्लियर होती है, वोकैबुलरी इश्यूज होते हैं। तो अगर आप उन चीजों को हाईलाइट करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंसान कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस में जाने लगे। Yeah. पर Exactly. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जगह अगर आप उस इंसान को गाइड करेंगे कि तुम में जो अच्छाई है, हेल्प द पर्सन टू फाइंड दैट स्पेसिफिक टैलेंट, और उसको बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने की जरूरत है। ठीक Exactly. है, अगर वो इंसान, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज इंट्रोवर्ट, आई होप एवरीवन नोज व्हाट इंट्रोवर्ट इज, Yeah. जो बहुत ज्यादा सबको फेस करना, सोशल होना नहीं Yeah. चाहता। लाइक कई बार हम लोग राइटर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स वगैरह जो खुद फेस ना करके चीजें, पोइट हैं या पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, Yeah. इस टाइप के लोग पब्लिक को फेस ना करके अपनी चीजों को अकेले में कर कर लेकिन सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं तो यू हैव सेवरल ऑप्शंस अपने आप को प्रेजेंट करने का, टू गेट फेमस।
Yeah. पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई स्टेज पे खड़ा होकर बोल पा रहा है तो वही बेस्ट है, या कोई क्लास में अगर फर्स्ट आ रहा है तो वही सबसे You इंटेलिजेंट है. इट have इज to नॉट ट्रू. find where you are, you fit in. You do not have to Yes, fit the in way the you are others' fit in, norms. you Yeah, don't have to force yourself कि मुझे इसकी तरह बनना है. exactly. We have to see कि मैं जो पिछली बार थी मुझे उससे बेटर बनना है. Exactly, yeah. Right? The Your comparison is from competitor the should older be self. right. Yeah, You should be your competitor, no one else. If you yeah, will compare yourself with your sibling, you will be the failure. कहते नहीं है कि अगर हमें जीतने की लगन हो तो हम जरूर जीतते हैं, पर अगर हम किसी को हराने में जाएंगे तो आज हमारा कॉम्पिटिटर कोई और है, कल कोई और होगा, परसों कोई और we होगा. can never be happy अगर with हमें our जीत, own we can never be growth. happy, we can never be satisfied in that case. Yeah, So our basic focus should be on our own self. कोई अगर हमें कुछ कह रहा है, कोई भी हमें कुछ नेगेटिव कमेंट करके कुछ टॉन्ट मार के चला गया, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट इट, जस्ट थिंक कि अगर वो इंसान मेरे बारे में बात कर रहा है तो मे बी ही और शी इज जेलस ऑफ मी. और अगर कोई आपसे जेलस है तो वो आपसे तभी जेलस है क्योंकि आप में कोई क्वालिटी है. exactly. जिनमें कोई क्वालिटी नहीं होती उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता. If you are having some quality, that's why people are comparing you with others or with their own self. हमें दूसरे की बातें सुनकर नेगेटिव फील करने की जगह वी शुड बी कॉन्फिडेंट. ठीक है, तुमने हमें कोई नेगेटिव कमेंट किया तो वो नेगेटिव कमेंट हमारे ऊपर नहीं आया, वो नेगेटिव कमेंट उसकी मेंटालिटी दिखाता है. Exactly, yeah. राइट. मतलब while having this live chat we can see कि many people Yeah. are commenting here. ठीक है, Yeah. तो I guess there is some issue. कुछ लोग comments कर रहे हैं कि you just leave this, और मैं कुछ अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो लीव इट. वो नेगेटिव कमेंट करके अपनी पर्सनालिटी को हाईलाइट कर रहा है. Because इट they इज have दैट a lot पर्सन्स of time. माइंडसेट. They have lot of time to They come, have, it is judge. their frustration, it is their Exactly. problem, and maybe they are feeling insecure that they cannot do this thing. That's why they are highlighting, or they are just trying to overcome these things. Instead of overcoming these problems, the person is trying to suppress others. Exactly. एक होता है ना कि अगर दो लोग हों, फॉर एग्जाम्पल दो लोग बराबर हैं, ठीक है, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि इफ ए एंड बी, टू पीपल आर इक्वल, Yeah. तो ए को बी से अच्छा होना है तो इट डिपेंड्स कि कैसे अच्छा होगा. दो तरीके हैं. पहला तरीका, ए अपने अंदर और अच्छी क्वालिटीज डेवलप करे Exactly. तो वो ऑटोमेटिकली बी से अच्छा हो जाएगा. लेकिन कुछ वीक पर्सनालिटीज ये सोचते हैं कि अगर हम उस बी को लो कर देंगे सबकी नजरों में तो शायद हम अच्छे हो जाए. Exactly. राइट. दूसरों की बुराई करके, दूसरों की वीकनेसेस दिखाकर हम कभी भी ऊंचे नहीं होते. हम जो हैं वही रहेंगे. लेकिन Exactly. दूसरों को मोटिवेट करके, दूसरों की हेल्प करके हम अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी बना लेते हैं कहीं ना कहीं कि हम भी सेटिस्फाइड है और हम दूसरे को भी बूस्ट अप करते हैं. सो इफ समवन इज डूइंग सम नेगेटिव कमेंट्स या कुछ नेगेटिवली बोल रहे हैं तो जस्ट डोंट बॉदर, अवॉइड देम. उनके मुंह लगकर हम उनके लेवल तक गिर नहीं सकते. Exactly. हमें अपना लेवल किसी के लिए नीचे नहीं करना है. बट कीप योर हैंड्स ओपन. इफ दे वांट, गिव देम द हेल्पिंग हैंड, उनको अपने तक पहुंचाने के लिए, Exactly. नहीं And कभी किसी you को will सप्रेस find करने you के will लिए. find once you are helping someone, you are also growing. Like you are growing, and which is not, which is never stopping. Whether Obviously. yeah, you help and you grow. So that's the thing. See, life, throughout our life we'll keep on learning. और अगर लर्न करना, अगर हम ऐसा फील करते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, लर्न करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो आई मस्ट से कि फिर जिंदगी जीने के लिए भी कुछ नहीं बचा. Exactly. Isn't it? We can see कि हमारे एल्डर्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले लो. उनके टाइम पर देयर वर नो मोबाइल फोन्स, इस टाइप के टीवी या वीडियो कॉल्स ये सब थे ही नहीं. बट व्हाट दे आर डूइंग टुडे, दे आर यूजिंग टच स्क्रीन मोबाइल्स, दे आर यूजिंग द स्टफ, और वो लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. Exactly. They और are अगर हम उस चीज पर उनका मजाक उड़ाएं, उनको सप्रेस करें, अरे आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड वन मोर थिंग विच आई हैव लेफ्ट आउट, आज के टाइम पर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं हम नेगेटिवली हर्ट कर रहे हैं. बच्चे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने की जगह कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की वजह से एम्बैरस हो रहा हूँ कि मेरी मॉम इंग्लिश में नहीं बात कर पा रही है तो वो मेरे स्कूल कैसे जाएंगी, या मेरी मॉम ये नहीं कर पाती तो मैं सबके सामने उनको प्रेजेंट नहीं करूंगा. We दिस are इज also not एब्सोल्युटली coping रॉन्ग. and understanding the generation gap. We are Right. expecting See, them to understand, but we are when not we were expecting.
we are not understanding. See, Yeah. when we were kids, right, at that time when the person is born, उस Yeah. टाइम बोलना कहना तो छोड़ो, खुद से उठना बैठना तक नहीं आता था. At that time our parents had taught each and everything to us. Yeah. और अब अगर उन्हें कोई चीज नहीं पता है और नई चीजें हम लोग सीख चुके हैं, तो इसमें अपने पेरेंट्स को समझाकर सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. Exactly. कई लोग क्या करते हैं, अगर उनके पेरेंट्स कुछ गलत बोल रहे हैं या कोई एल्डर है वो गलत बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन एरर्स है, तो हम Yeah. फौरन मुंह पर टोक, ठीक है, फौरन हम मुंह पर कहते हैं ये कैसे बोल रहे हैं, और हम उनके मुंह पे हंसने लगते हैं. दे फील एम्बैरेस्ड कि ये Yeah. मेरा मजाक बना रहा है. पर वही चीज अगर हम उस टाइम इग्नोर कर दें और बाद में वही करेक्ट टर्म यूज करके जनरल वे में बोल दें, तो हमारे पेरेंट्स उस चीज को समझ जाएंगे और अपने को भी इम्प्रूव कर लेंगे उस चीज. वी शुड नॉट फील सुपीरियर कि हमने कोई नई चीजें सीख ली हैं, समझ ली हैं, तो हम बहुत सुपीरियर हो. We grew because You of are never them, the and we superior. have to know this. Obviously. We grew out और because of them. तो आप सबसे पहले आजकल हमने देखा है, अगर इफ पेरेंट्स आर सेइंग समथिंग टू द किड्स, बेटा ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, हम अपने टाइम में ये करते थे, पहला जवाब बच्चों का आता है, आपको आज के टाइम का कुछ नहीं पता है. Exactly. जमाना बदल गया है, पता नहीं कौन से जमाने की बातें कर. इंस्टेड ऑफ बिहेविंग इन अ रूड मैनर, वी कैन टेल देम कि मम्मा ये देखो कितने ऑप्शंस आ गए, क्या क्या चीजें हैं, हम इसमें भी ट्राई कर सकते हैं. पापा Yeah. ये देखिए ये भी ऑप्शंस है, हम इसमें भी ट्राई कर सकते हैं. हम उन्हें समझा क्यों नहीं सकते? We have lots of time to talk to our boyfriends and girlfriends and our friends. For hours and hours, we can talk to them. We can have video calls. We can have throughout the night. We can chat with them. मगर पेरेंट्स से बात करने के लिए हमारे 15 मिनट भी भारी पड़ते हैं. While we don't have any time for our family. When we are sitting together, कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करते हैं? जब फादर वर्क से आ गए, we hardly spend any time with the father or with the mother. Yeah. रात का टाइम we can spend with the family, at least discuss करना how was the day, चीजें कैसी गई. अगर ये जनरल एक नॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगी, तो कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस भी हमारे साथ बढ़ती चली. And हम once पहली we एक्सपेक्ट conversate, जैसे क्वेश्चन आया था that parents don't allow them to be friendly with their friends and go out, right? तो उसका मुझे अभी like I got this thing कि once we start conversating with them, we are talking, we are giving them time, so they will not mind, like okay, she gave the whole week to us, let her go for a day, let her go for a day or right. two. So that comes when we are not fulfilling the things with them, that's why they are just stopping, right? So this can be one of the reasons. If the basic thing is, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है, they are telling you कि ये सही नहीं है और सही नहीं है, तो make them sure कि ठीक है आपको ये प्रॉब्लम लग रही है, you can go and check out कि मेरे किस टाइप के फ्रेंड्स हैं, क्या है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस अंडर दिस टॉपिक, ये टीन एज की वजह से हम लोग बात कर रहे हैं. देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज पीयर प्रेशर, राइट? कई बार हमारे फ्रेंड्स, हम उस सर्कल में हमने अपने आप को खुद ही क्लास में डिवाइड कर रखा है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास. अगर हम उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, उनकी तरह से नहीं कर पा रहे, तो वी फील इंफीरियर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तुम्हारे अंदर तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे ट्रेट्स हैं. कई बार ऐसा होता है, वी ट्राई टू हैंग आउट विद द सीनियर्स ग्रुप्स में. लाइक बॉयज में ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई है कि सीनियर्स के ग्रुप में रहो, कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो स्कूल में, तो वी विल से सीनियर्स आर देयर टू सेव अस. तो हमारा ग्रुप अच्छा है, हमारा ज्ञान अच्छा है. और उस सिचुएशन में कई बार सीनियर्स जो है मिसयूज भी करते हैं. अपने साथ ले गए, ओके जस्ट ट्राई स्मोकिंग वंस, ठीक है, लाउंज ले गए, टुडे आई एम पेइंग, आई हैव पेड फॉर यू. बच्चा कह रहा है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी पॉकेट मनी इतनी नहीं है कि आई कैन स्पेंड. अरे मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. बस धीरे धीरे एक दो बार जाते जाते आपकी आदत पड़ गई. पेरेंट्स को बताएंगे नहीं बच्चे, पेरेंट्स से झूठ बोल दिया कि एक्स्ट्रा क्लास था, दिस और दैट, और आप उस सीनियर के साथ एक दो बार वो चीज एंजॉय कर चुके हैं. अब अल्टीमेटम आता, पैसे लेकर आना, अदरवाइज तुम्हारी ये चीज जो है ना, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और तुम्हारी जो लड़ाई वड़ाई है मैं खुद तुम्हें उनसे पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें ये धमकी दूंगा, वो धमकी दूंगा. अब क्या है, सीनियर्स के साथ उस टाइम एंजॉय करते वक्त तो सेल्फी ले ली,
स्मोक करते में भी सेल्फी ले ली, हुक्का लेते में भी सेल्फी ले ली। अब वही सेल्फीज यूज होती हैं ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर कल इतने पैसे नहीं आए तो आई विल बी टेलिंग दिस टू योर पेरेंट्स। तो They कहीं ना once know कहीं हमें ये भी their weaknesses and then they hit that nerve. राइट, Exactly. never Okay, never ma'am, just a disclose the minute, ma'am. weaknesses. This live has the 1 hour limit, so it would be ending in few or some seconds. So, is there Yeah. any problem we can rejoin so that we can just conclude? Like, Okay, the basic thing is we can conclude it just now and we can have another session later on according to the demands and questions of the public. yeah, because right? it's like 20 And seconds left. That's why. Yeah, sure. So if whomsoever is attending this, I just like to tell one thing. You can contact